Ma'am, am I audible? Ma'am, am I audible? Supriya ma'am? Am I audible, ma'am? Okay, okay, okay. Am I audible, ma'am? Hmm. Am I audible, ma'am? Am I audible? हाँ हाँ
Good morning, Rashmi ma'am. Am I audible? Gunjan ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So, Gunjan ma'am, we are welcoming you on behalf of Oriental University Indore. So, Thank you, dear ma'am. students, we are very grateful to Gunjan Shukla ma'am for accepting our invitation. I would like to request technical team, please check the smart class if there is a any problem related to the voice or not. So, on behalf of Institution Innovation Council, Oriental University Indore, I would like to welcome Dr. Gunjan Shukla, Vice Principal and the Dean, Department of the Commerce, Sant Hirdaram College. Thank you very much, ma'am, for accepting our invitation. I would like to also welcome Professor Dr. Rashmi Somani, Oriental University Indore, Dean Management, Faculty of Management and Commerce. So today we are discussing on the ideation, and the this workshop ideation is related to open your startup, open your business with the small amount, with the small capital amount. So now I would like to request Professor Dr. Rashmi Sumani for the inaugural address. I think there is just some technical glitch with the Dr. Rashmi Sumani ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue, ma'am. Uh, I would like to request Professor Dr. Rashmi Sumani, ma'am, please start. Gunjan ma'am, I'm just finding that what is the problem. Not a issue, not a issue. Take your time. Just hold on. Yes.
Am I audible? Hello? Am I audible? Okay. Good morning. Am I audible? My warm greeting to everyone. Today, we are gathered to attend an expert lecture on problem solving and ideation workshop. I welcome to our guest speaker, Dr. Gunjan Shukla. She is Dean Commerce and Vice Principal at Sant Hirdaram Girls College, Bhopal. The main goal of an ideation session is to spark innovation and draw out a sense of creativity. You bring a team together to openly discuss and share ideas. All students can benefit from this ideation workshop and it will encourage collaboration and innovation. As an innovation ambassador, I believe an ideation workshop is a dedicated session for coming up with new ideas. Unlike traditional brainstorming, ideation workshops are unique because they take place in unusual settings and introduce new stimuli. With this thought, I hand over this virtual stage to Dr. Supriya Pathak. Thanks everyone. Over to you, Dr. Supriya Pathak. So thank you very much, Dean Management, Professor Dr. Rashmi Somani. Now I would like to request Dr. Gunjan Shukla. Please start the session, ma'am. Okay, so a very good morning to one and all present. And first of all, I would like to thank Oriental University Indore for giving me this opportunity to share a few of my thoughts related to ideation and starting business for students. I am grateful to the management, and I'm again grateful to Dr. Supriya Pathak ma'am as well. So to begin with my whatever I'm going to talk about today, I would like to first tell you all that, you know, we are in the age where students should be that smart, where, you know, you should not put in more efforts for finding jobs, and you should not be more of mindset with a, you are looking for a job, you are a job seeker. Rather, you should be a job creator. This is most important aspect for today's generation. क्योंकि हमें अपने देश को develop करना है. We are moving towards growing the economy of the country. So we should work first and foremost on the problem of removing unemployment from the society. And here we can take a lot of actions. We have very small things around us from where we can create ideas. Being an entrepreneur, the first and foremost important thing is you need to have growth mindset with you. Unless you have growth mindset, you will not start thinking out of the box. जो चीजें चल रही हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट. तो अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट आप कैरी करते हैं तो आप हमेशा लाइफ में ग्रो करते हैं, आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड विथ यू. एंड व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग आइडिया,
जहां हम ये बात करते हैं, क्योंकि जब भी किसी से बात की जाती है ना, तो दो चीजों पर लोग रुक जाते हैं। पहला कि व्हाई टू टेक रिस्क, व्हाई शुड आई टेक रिस्क, एंड अगर रिस्क लिया तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया तो लोग हमारी हंसी उड़ा देंगे। ये सारी सोच आपको छोड़कर आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। और इसके पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्कैन द मार्केट, स्कैन द एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम अराउंड अस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम को बड़ा ईज आउट कर दिया है चीजों ने। जैसे अगर मैं एलेक्सा का एग्जांपल दूं, आप सभी जानते हैं कि एलेक्सा से एक वॉइस कमांड पे आप अपने घर के कितने सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सो उसी तरह से आई ऑलवेज ट्राई एंड आस्क माय स्टूडेंट्स दैट you need to have that kind of vision, look forward and try to identify the problem around you. That is the only thing from where you can generate the idea. I would like to share a very small story. First of all, मैं अपनी ही कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बड़े ही सरल और बहुत ही छोटे से कुछ ऐसे बिजनेस मैंने भी किए हैं और एक स्टार्टअप मेरा अभी भी चल रहा है। कुछ इनिशियली ऐसा हुआ था कि मैं कुछ समय पहले भोपाल में एक लोकेलिटी में रहती थी और मैं उस वक्त पढ़ रही थी, बट मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि वहाँ जो सोसाइटी थी, लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पे बच्चों के लिए दे वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ good place where their students can have that holistic development. Their students can learn all kind of activity, that is yoga, art, dance, mural, clay art, and fireless cooking and computer proficiency. And when we are talking about the holistic development of a child, बच्चे का एक स्कूल के एजुकेशन से अलावा जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरीके की बातें लोग करते थे. So most of the time, I used to feel that I know many of these skills. So why should not I am taking initiative and I should put this problem in front of me and I should start thinking how to solve this issue. So I initially started with a play school that the name of the play school was Intellect Play School. इंटेलेक्ट प्ले स्कूल की खासियत ये थी कि यहाँ पे कोई मुझे प्ले स्कूल में जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है जैसा प्ले स्कूल, ये वो प्ले स्कूल नहीं था, बट इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी स्कूल एंड मोर ऑफ जो मम्मियों की प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हम अपने बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाते, हम अपने बच्चों के स्कूल की जो एक्टिविटीज आती है कई बार हम बड़े पजल्ड हो जाते हैं कि उनके लिए कैसे काम करना है. सो वहां पे दे वर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस. That was a very new society and very less amount of people used to live there. So जब मुझे ऐसा लगा कि ये skills मुझे पता है, because I love to teach, मुझे शुरू से हमेशा से ऐसा लगता था कि मुझे एक टीचर बनना है. तो मुझे ऐसा लगा कि जो स्किल्स मैं जानती हूँ उसी एक स्किल को मैं अपना स्ट्रेंथ बना सकती हूँ. तो मैंने इनिशियली उस स्कूल को शुरू किया एंड आई स्टार्टेड विद 5 किड्स ओनली. एंड द टाइमिंग आई यूज्ड टू कीप फॉर दैट स्कूल वाज, शाम को स्कूल से जब बच्चा आता था तो 5:30-6 बजे से बच्चा मेरे पास होता था 7:30-8 बजे तक. एंड संडे को आई यूज्ड टू टेक देम आउट फॉर सम फिजिकल एक्टिविटीज, सम विजिट्स, है ना, छोटे छोटे विजिट्स मैंने उन्हें कराए. कुछ म्यूजियम्स हैं भोपाल में बड़े सुंदर सुंदर, वहां उन्हें मैंने ले जाके उन्हें घुमाया, तो उन्हें हिस्ट्री का पार्ट भी कवर किया, उन्हें साइंस का पार्ट भी कवर किया, उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग पर मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया. ये बात है 2009 की. आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ ही दिनों में जो स्ट्रेंथ मेरी 5 की थी वो 75 पर पहुंच गई थी. मतलब विद इन 6 मंथ्स मेरे पास इतने बच्चे आने लग गए थे हॉबी पर काम करने के लिए. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से आप बहुत अच्छे आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं. इसी तरीके का प्ले स्कूल अभी मेरे एक स्टूडेंट ने इस सिमिलर आइडिया से इंदौर में स्टार्ट किया है. एंड उनका नाम राहुल पुरोहित है, जिन्हें मैंने मेडिकैप्स में पढ़ाया था. उनके साथ मैंने ये शेयर किया और उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. ही अगेन स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ किड्स एंड नाउ हिज स्कूल इज गोइंग परफेक्टली वेल. Again, another story I want to share before getting into very much of the technical aspects. I was in Delhi for some time. Towards my surrounding, I found that वहाँ पे बहुत fast life है और जो ladies हैं, they are working ladies. They used to miss something made of homemade, जो होता है handmade, homemade जो products होते हैं, sweets होते हैं. एंड वो समय था गणेश चतुर्थी का और कुछ जो लोग थे वहां पे 90 फ्लैट्स थे उस सोसाइटी में. तो जब हम गैदर होते थे तो दे यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट द इशू कि ना हम तो कभी घर पे लड्डू नहीं बना पाते, हम तो कभी स्वीट्स नहीं बना पाते, मेरी मदर बहुत अच्छा बनाती है बट शी स्टेज वेरी फार, सो आई मिस द लड्डू, आई मिस द टेस्ट. और विंटर्स आते हैं तो मुझे वो लड्डू नहीं मिलते हैं.
Again, you know, that time I was very new to that place, and before joining ITM University Gurgaon, after that I joined that place for like 6-7 months. I was very free, so I just thought that, you know, I have again a skill of cooking well. मैं थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ कुछ खाना. So I generated again an idea and I started working on this. So I started making laddus and I started supplying these laddus to you know, my nearby areas. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद के जितने भी ऑर्डर्स उस सोसाइटी के होते थे वो मेरे पास आना शुरू हो गए. तो मुझे अपने पास स्टाफ रखना पड़ा, और जब मैंने प्ले स्कूल चलाया तभी भी मैंने अकेले उस चीज को स्टार्ट किया था, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मेरे पास स्टाफ हो गया था कुछ 8-10 लोगों का. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यू नो, द थिंग इज, आपके लिए, आपको अगर आइडिया जनरेट करना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं करना है. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वेयर यू कैन लुक टू अ प्रॉब्लम, कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. वो भी आपके लिए एक बिजनेस आइडिया की तरह काम करता है. अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस डे 1 से बहुत बड़ा हो जाता है, बट देन वेरी स्मॉल स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो अ बिजनेस. सो आप अगर ये समझ पाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक पेंडेमिक का सिनेरियो देखा, आपने देखा होगा देयर वाज अ टाइम कि मार्केट से सैनिटाइजर और मास्क सारे फिनिश हो गए थे. बट देन यू नो, जब ये चीज जब ये पेंडेमिक ने हिट किया कंट्री को, उसी वक्त कितना स्पीड अप हुआ ये सारी चीजें कि बहुत सारे लोगों ने इसका बिजनेस शुरू कर दिया. और वहीं पे इनोवेशंस कुछ इस प्रकार के आ गए कि मास्क के तरीके बदल गए. पहले बहुत सारे फिल्टर्स लग के मास्क आते थे, फिर अब आपने देखा होगा ड्रेस के मैच के साथ मास्क बनने लग गए, और ड्रेस के साथ एक मास्क भी, जब आप एक ड्रेस खरीदते हैं तो आपको उसका सिमिलर मैच का एक मास्क भी अटैच करके दिया जाता है. तो आप समझिए कि इनोवेशन का कोई ये वो मतलब कोई उसका कोई रेंज नहीं है कि आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन करते हैं तो ही आपका बिजनेस सर्वाइव करता है. यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द करंट ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट. यू ओनली नीड टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्किल यू हैव. यहाँ पे छोटे बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी, जो अभी आप लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर एंड एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट there are students of your age in my college also where we started working towards these people. हमने इनको एक प्लेटफॉर्म देना शुरू किया था जिसमें हम फेयर लगाते थे कॉलेज में. So this again, this fair in Santardaram Girls College was started since year 2009, और इसका तेजस्विनी हमने नाम रखा हुआ. और इसमें हमने कुछ बच्चों को ये प्रैक्टिस देना शुरू किया कि आपको हैंडमेड आइटम्स को लाके यहाँ पर डिस्प्ले, एग्जीबिशन कम सेल में इसको प्रेजेंट करना है. अब इस एग्जीबिशन कम सेल के पीछे there was a idea that, you know, a student who is learning entrepreneurship, because entrepreneurship was a subject as a foundation subject given by the universities. हर जगह पर DAVV है, बरकतुल्ला है, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट ही चल रहा है. So, you know, university and government and everyone is trying to force every student to, you know, to push them to think like that कि आप कोई आइडिया जनरेट करें और अपने बिजनेस को शुरू कर सकें. तो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू हर बच्चे को ये एक एस्पेक्ट दिया था कि आपको अपना आइडिया क्रिएट करना है, आपको उस आइडिया पर वर्क करके अपना एक प्रोडक्ट बनाना है, बी इट अ सर्विस, बी इट अ प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट और इंटेंजिबल प्रोडक्ट, और उसको आपको डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले करने के बाद में आपको उसका एनालिसिस करना है कि आपने कितना रॉ मटेरियल, लेबर, आपके वेरिएबल कॉस्ट, आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहे उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, आपको प्रोसेस में कितना पैसा लगा, आपका लेबर, आपकी जो मेहनत है वो कितना आपने उसमें यूटिलाइज किया. एंड देन यू कम टू something called selling price. मतलब आप अपना कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, then you add profit and then you make a selling price, and then you need to promote the product as well. इस पूरी एक्सरसाइज में we try to give them a kind of आइडिया कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और इस प्रोडक्ट को, इस तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी. तो जब ये पूरी एक्टिविटी फिनिश होती है, 2009 से लेके अभी तक ये इस कॉलेज में चल रहा है. और क्योंकि कुछ समय पहले भी मैं इस जगह पर थी तो ये मैंने शुरू किया था 2009 में, और मुझे खुशी है कि ये आज तक ये प्रोसेस चल रही है यहाँ पे. और इसी के चलते हमने कुछ स्टूडेंट्स अब आइडेंटिफाई किए और हमारे उन स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को हमने मार्केट तक इंट्रोड्यूस किया. अभी उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया. वो कुछ बच्चे आज मेरे साथ इस सेशन में मौजूद हैं और कुछ समय बाद वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आइडिएशन
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आइडिएशन सिर्फ एक वो नजरिया है, एक वो सोच है, कहते हैं ना कीन ऑब्जर्वर बनना, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जो कि आपके एक स्ट्रॉन्ग स्किल से सॉल्व हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो वो अपने कम्युनिकेशन को लेकर एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू करना चाहते हैं, दे कैन डेवलप देयर ओन एप्लीकेशंस एंड दे कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग पीपल, जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हीं के लिए आप ट्रैवल प्लान्स बनाकर कंपनी से कनेक्ट करके यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो चॉकलेट्स बहुत अच्छी बनाते होंगे, तो हैंडमेड होममेड चॉकलेट्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बहुत बड़े ऑर्डर्स इन सब चीजों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको क्रोशिया और निटिंग का बहुत अच्छा, जिनके पास स्किल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्रोशिया और निटिंग के लिए आज ऑनलाइन नेशनल लेवल शॉप्स चल रही हैं, जहां पर आपके ये प्रोडक्ट्स को हजारों में बेचा और खरीदा जाता है। सो यू कैन अर्न अ लॉट जस्ट सिटिंग एट होम। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज डूइंग दिस, शी विल बी टॉकिंग टू यू शॉर्टली। अनदर देयर मस्ट बी फ्यू स्टूडेंट्स जो बेकरी का काम बहुत अच्छा करते होंगे, जो होम बेकर्स बन सकते हैं। दे कैन टेक ऑर्डर्स। आप इंटरनली अभी यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। कोई होगा जो कि पैकेजिंग के पार्ट पर काम कर सकता है, कोई होगा जो उनके प्रमोशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर काम कर सकता है। तो इंटरनली ही आप एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप बिजनेस भी क्रिएट भी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली यू कैन मूव टूवर्ड्स द मार्केट। अभी मार्केट में जाने के लिए यू नीड टू हैव लॉट ऑफ प्रिपरेशंस रिगार्डिंग हाउ यू विल बी लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी योर टारगेट ऑडियंस, आपका लोगो डिजाइनिंग है, आपका प्रमोशन है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। इसका एक छोटा सा, कहते हैं ना, एक छोटा सा आपका इंटर्नशिप पार्ट जो है वो आप अपने कॉलेज में कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ई सेल है तो ये बहुत अच्छी बात है, जहां पे यू कैन यू नीड टू लुक आफ्टर, यू नीड टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर स्किल इन यू, जिसको आप अपनी हॉबी को एज अ enterprise, as a entrepreneur, you can convert your hobby into your work. And there are n number of business ideas जहां पर आप zero या low investment से काम शुरू कर सकते हैं. Again, I would like to put up one more example. One of my student is having a very good skill of making scrunchies, जो आप लोग बालों में लगाती हैं गर्ल्स. सो शी अगेन डेवलप दैट स्क्रंची इनटू अ वॉच के बैंड में उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया. सो अगेन शी इज पुटिंग द वॉच एंड उन्होंने स्क्रंची से उसको हैंड का बैंड बनाया हुआ है. आई विल शेयर फ्यू ऑफ द पिक्स with Supriya ma'am and she will share with all of you. Supermart पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी सेशन के बाद में. So ma'am, how much time I have more, because it is showing 9 minutes more remaining time. Not audible. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. So, ma'am, after 9 minutes, we will join with the same link. All right. So before that, I would like to call one of my student, Pragya Gupta. Pragya, can you unmute yourself and can you talk about your project? Pragya Gupta? Yes, ma'am. Yeah. If you can switch on your camera, Pragya. Yes, ma'am. Give me a minute. Yeah. Yes, Pragya. Hello, everyone. My name is Pragya Gupta, and I'm a student of BSc, and I'm currently pursuing my Bachelor of Science, and I'm in third year of my college, and I'm pursuing my college from Sant Hardaram Girls College. So first of all, I would like to thank Gunjan ma'am and Oriental College for giving me this opportunity to share my experience with you all. So जैसे कि मैम ने बताया कि हमारा कॉलेज फेयर्स ऑर्गेनाइज करता है, तो ये बात उसी टाइम की है कि रक्षाबंधन के ओकेजन पे हमारे कॉलेज ने तेजस्विनी फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा था. हमारे पास बैनर आए कि फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें स्टूडेंट्स अपने स्टॉल लगा सकते हैं. तो सुन के अच्छा लगा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं. उस टाइम बिजनेस का कुछ भी सोचा नहीं था, बस एक एक्सप्लोर करने के आइडिया से स्टॉल लगाने का सोचा. फिर ये हुआ कि किस चीज का स्टॉल लगाया जाए. तो मैंने लास्ट तेजस्विनी फेयर अटेंड किया था. जब मैं लास्ट तेजस्विनी फेयर में थी
तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उस फेयर में बहुत अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स लगे थे और हैंडमेड आइटम्स लगे थे, बट बेवरेजेस का कोई स्टॉल नहीं था। तो मेरा वो ऑब्जर्वेशन था कि अगर इस फेयर में एक बेवरेजेस का स्टॉल होता तो शायद उस स्टॉल का बहुत अच्छा सेल होता, क्योंकि मुझे भी लगा कि कुछ ड्रिंकिंग आइटम अवेलेबल होना चाहिए था। तो मैंने उस वाले ऑब्जर्वेशन को इस फेयर में यूज करना चाहा। फिर ये डिसाइड हो गया था कि मैं बेवरेजेस का स्टॉल लगाऊंगी, पर उसमें भी किस चीज का। तो मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है और लॉकडाउन में हम सब ने घर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि बाहर जाने को तो मिलता नहीं था। तो मैंने कॉफी, कोल्ड कॉफी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये आइडिया था कि कोल्ड कॉफी का लगाते हैं। उसके बाद बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी रखा गया था, तो हम और मैं और मेरी टीम पूरी क्रिएटिविटी के साथ स्टॉल में प्रेजेंट हुए। हमने, क्योंकि एक होता है ना, जैसा जो दिखता है वो बिकता भी है, तो हमने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया शेफ्स लुक में, और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और फेयर हुआ, हमारा फीडबैक बहुत अच्छे रहे, सेल्स भी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और उस चीज की शुरुआत हो गई जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी। ये शायद वो आइडिया था, वो पैशन था कॉफी के लिए, तो वो चीज हो गई। उसके बाद कॉलेज ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी इसको अलग अलग लेवल पे शो अप करने के लिए। उसके बाद हमने मल्टीपल टाइम्स अपने स्टॉल रिप्रेजेंट किए। स्टॉल्स हमेशा बेनिफिटेबल रहे, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर एक बार कुछ नया सीखने को मिलता था, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइडेंस टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा कि जब एक बार स्टॉल लगाते थे कुछ ना कुछ कमी होती थी, लेकिन वो सीखने को मिलती थी। नेक्स्ट टाइम हम और इम्प्रूव होते रहे। और अब इस आइडिया पे हम वर्क करने जा रहे हैं कि जो कोल्ड कॉफी का स्टॉल है उसे प्रीमिक्स या सैशे फॉर्म में हम मार्केट में सेल करें। तो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, और बहुत जल्द इस आइडिया पे वर्क करके हम उसे मार्केट में लॉन्च करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं जो सबसे शेयर करना चाहूंगी कि हमेशा अपने साथ एक ऐसा गाइडेंस, एक सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि हम लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। मैम ने बिल्कुल कहा कि रिस्क लेना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन एक सपोर्ट होता है। एक तो टीम वर्क का सपोर्ट होता है, आपके अप्स एंड डाउन्स में साथ रहती है, हमेशा सारी चीजें वैसी नहीं जाती हैं जैसा आप प्लान करते हो, लेकिन आप सीखते हो और नेक्स्ट टाइम उसे और इम्प्रोवाइज्ड करके प्रेजेंट करते हो। तो गुंजन मैम हमेशा हमारे साथ रही हैं, हमें सपोर्ट करती रही है हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप सबके पास भी कोई एक ऐसा, अपने साथ कोई ऐसा गाइडेंस रखेगा जो आपको हर एक पॉइंट पे मोटिवेट करे, जब भी आप डाउन हो रहे हो वो आपको सपोर्ट करे। दैट इज इट। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि प्रज्ञा जब कोल्ड कॉफी बना रही थी, तो इनिशियली तो उन्होंने, जैसे कोल्ड कॉफी हम लोग बनाते हैं और उसको जैसे मग्स में ग्लास में सर्व करते हैं, उस तरह से शी स्टार्टेड विद दैट। बट देन नाउ शी इज वर्किंग ऑन द प्रीमिक्सेस, जिसमें कि ऐसे प्रीमिक्सेस आएंगे कि आप उस कोल्ड कॉफी को जब चाहें तब आप शेक करके एंड यू कैन प्रिपेयर योर कोल्ड कॉफी। सो इसको करते वक्त इन्हें प्रॉब्लम ये आती है, अभी भी शी इज वर्किंग ऑन दैट प्रीमिक्स पार्ट, कि जब वो कॉफी पे काम करती हैं, कॉफी को ओपन करती हैं और कॉफी जब मॉइस्चर के कनेक्ट में आता है तो वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो दिस हाउ यू लर्न। आप सोचिए कि इस तरह से हम कभी सोचते नहीं है कि हमको कॉफी, अगर कोल्ड कॉफी बनानी है तो हम इसका प्रीमिक्स यूज करेंगे, हम इसको ट्रैवल करते वक्त अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो अभी जब शी स्टार्टेड वर्किंग इन दिस एरिया, तो उन्होंने जब ड्राई स्टफ को मिक्स करना शुरू किया और जब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो अभी शी इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, शी इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम in her case, and she has even worked on the sachets and packaging part. कुछ पिक्स हैं जो अभी मैं प्रेजेंटेशन में नहीं डाल पाई हूँ, आई विल शेयर विद सुप्रिया मैम। मैम आप स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ये सारी चीजें। आई थिंक ये टाइम फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट उसमें मैं अपनी दूसरी बच्ची से आपकी बात करवाना चाहूंगी। मैम शुड आई रीजॉइन? No, ma'am. You can continue, ma'am. Still 3 minutes are left. All right. Now we have I have one more student of mine, Shehma Mehfooz. Shehma, can you please unmute yourself? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shehma, please share your journey. Okay, first of all, a very good morning to all the respected members present in this team. Myself, Shema Mehfooz. I'm an undergraduate student of BCom Honors final year. So to begin with, I would say that all of us has some or the other potential in us. But the thing is that we all need either a platform or someone who can recognize that potential within us.
So as Gunjan ma'am said, our college always organizes a Tejaswini fair. It is an annual fair that is organized either near the Diwali festival or the Holi festival. So 1.5 year back, I did a pastry course. Though I had no intention of being a homemaker or selling these cakes or cupcakes, but 1.5 year back, my respected ma'am, Rana ma'am, she said that Shema, you have to put up a stall, and it is mandatory that those eatable items has to be made by you. So I was quite worried. What will I do? Though I'm excellent at baking, but still I'm not that good at cooking. My friend suggested me that Shima, you bake cakes. They are very tasty. You can put up a stall of your own cakes. So I did this, and the response that I got from grabbing that opportunity of Tejaswini Fair was, it is, I still can't describe that experience in words, because I literally got 6 to 7 orders. It was my first time that I took a bulk order. I made 35 to 40 items to put up in the stall. All the items got sold, and after that I got 6 to 7 orders from the college students and faculty itself. So from that day I decided, my cousins, when I came back to home and shared my experience with my family and my cousins, they told me that ma'am, that I had this dream of being an entrepreneur since childhood, but my father, he is a businessman. I always told him, Papa, I want to handle your business when I will grow up. But he said that first you have to prove yourself. First, either you do MBA and work in a corporate, then come with the experience, because girls are fragile. They cannot tackle the business pressure that easily. So I was really worried that, because before I complete my undergraduation, I wanted to be independent. I wanted to be an entrepreneur. So I feel very lucky that it happens that usually we have to work and move towards our goals. But this time I feel so lucky that Gunjan ma'am, she recognized my potential. She came to me, she approached me, and my dream came itself walking towards me to be an entrepreneur. So I feel very happy with it. And now I'm still working on my premixes. I have my Instagram page. I sell cakes and I make all the bakery items: cakesicles, popsicles, muffins, cakes. Now I'm working on my premix, and 2 of my premix are ready, and still I'm working on more flavors. So for that, I would say that all you need is motivation, and never give up on your dream. And also, I would like to thank respected Gunjan ma'am, because whenever I feel low, I feel down that I cannot do this. Whenever I talk to him, and even if I'm around her, the good vibes and the aura that I feel is it's that gives me the motivation. So thank you so much, ma'am, for always motivating me.